أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. Jazakumullah khairan Afaq for such a beautiful recitation. So we'll start with the event inshallah. So let me give you some background information about the event today. So we have been seeing a large influx of Muslim students going abroad and going to the West to pursue their higher studies, especially in the masters or in PhD and even in the bachelors. So similarly, many of us will also be going abroad to pursue our higher studies to several universities in the West, MIT, Stanford, and also other universities. So for this purpose, we have to encounter with several challenges and problems such as halal and haram, such as how to balance our deen and dunya, such as differences in fiqh, etc., etc. So Sir Zad Said Khan has I'll ask Sir Zad Said Khan to provide us with his valuable knowledge and insights on this topic. So Sir Zad, the stage is yours. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. आपको मेरी आवाज आ रही है सबको clearly? Yes, we can hear you. अच्छा, okay. I hope there's not too much of a lag as well. Lag तो नहीं. All right, good. Jazakallah khair. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Let me get started very quickly because there's a lot to cover in this topic and there's very little time. I want to talk to you about 4 things today on a high level. 1, I want to talk to you about your Muslim identity. 2, I want to talk to you about differences in fiqh and ideology, which you will see when you go to the West. 3, I want to talk to you about Islamophobia. And 4, I want to talk to you about halal food. So with that outline in mind, inshallah, we'll get started. The most important thing that I want to tell you guys कि आप लोग जहां भी जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, चाहे यूरोप में कहीं और हो, the reality is that you're going from a place where you as a Muslim are in the majority to a place where you as a Muslim are going to be in the minority. ठीक है? So that's a completely different situation that you're going to be faced with. It's a completely different reality that you're going to be living. And जो आपकी infiradi personal Muslim identity है, as someone who believes in Allah, as someone who believes in the Quran, as someone who believes in Nabi sallallahu alaihi wasallam, that is going to be much more important to you. That is going to be a much more central part of your life when you are in a place where that identity is in a minority. ठीक है? So that's the first thing that you have to keep in mind. कि हाँ, मतलब culture shock के लिहाज से आपको कोई खास culture shock नहीं होएगा. You
guys who are going to study, you've been studying here in English medium universities where there is access to a lot of Western ideology. वैसे भी हमारे मीडिया पे सारा वेस्टर्न मीडिया का इन्फ्लुएंस है, so it's not a culture shock. You know pretty much what the West is like already, despite maybe not having been there before, right? The difference that you're going to find is the fact that you are now not just one of the crowd. You are a special person. You are a Muslim, and that Muslim is somebody who is distinct from the rest of the people, right? This ping that comes up when people joins, so that can be turned off by the host in the settings. So आप host participants की settings में जाके when a new person comes, तो उसकी ping जो है वो आप बंद कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, so मैं बात ये कर रहा था, पहली बात ये आपको बताने की है कि बहुत सी अच्छी चीजें हैं वेस्ट में से सीखने की. There are a lot of technologically advanced होंगे, socially advanced होंगे, you know, they might be advanced in a lot of things, but that does not mean that you as a Muslim should have an inferiority complex while going to the West. This colonial mindset that we have, जिसकी वजह से मैं भी अंग्रेजी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं बचपन से ये बात बिठाई गई है कि ये अफजल ज़बान है और ये बेहतर है और ये औला है. इस colonial mindset को हमने अपने दीन पे नहीं अप्लाई करना, अपने दीन पे नहीं अप्लाई करना. Our deen, alhamdulillah, gives us a set of morals that are far superior to anything that you will see in the West. You will see that they in the West might be applying some of those morals जो कि हमारा दीन भी सिखाता है, better than Muslims themselves, right? कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जी अगर आप मस्जिद में जाओ तो जूते ऐसे बिखरे हुए होते हैं और अगर आप बाहर जाओ तो उन्होंने जो है हर चीज प्रॉपर्ली लाइन में कोई काट नहीं रहा होता और कोई आपसे क्या कहते हैं और जूते अपने सीधे रखना. ये इस्लाम नहीं है. इस्लाम जो है वो अल्लाह ताला पर ईमान लाना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, कुरान पर, आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर. ये इस्लाम है. और हाँ, वही इस्लाम हमें बहुत सारी चीजें अखलाकियात के बारे में भी सिखाता है, अगरचे हमने उनको अपनाया नहीं है. जिन लोगों ने अपनाया है उनके अपनाने के जरिए से वो हमसे आगे हैं, तो हम उनसे वो अच्छी बातें जो कि हमारा दीन हमें बता रहा है उनके नमूने के तौर पे जो वो हमें पेश कर रहे हैं वो ले सकते हैं, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दैट कम्स इनटू आवर माइंड कि जी हमारा मुल्क देखो, हमारे यहाँ करप्शन भी है, हमारे यहाँ ये भी है और वो भी है. वो सारा कुछ उनके पास भी है, सारा कुछ. लेट मी टेल यू, दे हैव एवरी बिट एज मच करप्शन एज वी डू, दे हैव एवरी बिट एज मच हिर्स एंड एवरी बिट एज मच सेल्फिशनेस एंड एवरी बिट ऑल द खराबियां जो आपको पाकिस्तानी माशरत में मिलेंगी वहां भी मिलेंगी, ज्यादा थोड़े महज़ब तरीके से, ज्यादा थोड़े ढके छुपे तरीके से मिलेंगी, मगर वहां भी मिलेंगी. तो ये आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप अपने दीन को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को जो है कमतर समझें उधर जाते वक्त. पहली बात आपको ये कहनी है कि आपने अपने आप को कमतर नहीं समझना. आपने जब उधर जाना है ना, सो यू हैव टू ब्रिंग विद योरसेल्फ दिस प्राइड इन योर आइडेंटिटी कि मैं एक मुसलमान हूं. आई हैव चोजन टू बी अ मुस्लिम, आई हैव चोजन टू बी समबडी हु बिलीव्स इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बिकॉज़ यू सी, इफ यू गो देयर एज जस्ट अ रिवायती मुस्लिम, एज अ मुस्लिम जो कि सिर्फ इसलिए मुसलमान है क्योंकि उसके माँ बाप मुसलमान है और उसके माँ बाप ने उसको बताया, तो फिर आप अपना इस्लाम से हाथ धो बैठेंगे वहां पे. Because then you have no reason to stay true to your Islam because your Islam wasn't built on the right principles in the first place, right? So you make this conscious decision before going that I personally make this decision that I believe in Allah and that I believe in the Prophet and I believe in this religion, right? And that religion defines my values. तो चाहे मैं जिस इलाके में रहता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कहीं और हो, उस इलाके की जो prevalent values उस इलाके में जो कॉमन हमें वैल्यूज पाई जाती हैं, नजर आती हैं, वो चाहे मेरे दीन की वैल्यूज और मेरी पर्सनल वैल्यूज से मुख्तलिफ हो या सेम हो, मैंने अपनी वैल्यूज पे कायम रहना. सो व्हेन यू गो, यू डोंट सैक्रिफाइस योर वैल्यूज फॉर द सेक ऑफ व्हाटएवर एल्स यू माइट बी गेटिंग ओवर देयर. यू माइट बी गेटिंग एन एजुकेशन, you might be getting exposure to the world, you might be getting some technological advancements, you might be getting good salaries, but you cannot let any of that allow you to sacrifice your values and your deen and your identity. Okay, so that is the first important thing that I want to tell you. And when you go there, some of your values will be kind of incompatible with their values, right? उधर की values में मिसाल के तौर पे gender roles की कोई अहमियत नहीं है, right? Men and women are supposed to be identical. हम कहते हैं men and women are supposed to be equal but not identical. They are defined to have different gender roles in society by Islam. The West discards those and says कि जी बिल्कुल बराबरी का मतलब है कि एक जैसे होने चाहिए.
right? And similarly, you will find that they have certain values about parents. They find it completely okay to send their parents to an old folks home, right? उधर आपको ये नहीं मिलता कि बुजुर्ग माँ बाप को अपने घर में रख के और उनकी खिदमत की जा रही है, उधर ये मिलता है कि जैसे माँ बाप जो हैं वो इतने बड़े हो जाएं कि उनका ख्याल रखना पड़ रहा है, तो आउटसोर्स दैट ख्याल रखना to professional services that do that for you. And you will see a lot of other differences in terms of values. Not all those differences need to be internalized and adopted. Keep an eye out for what values they have that are beneficial and what values they have that are incompatible with your deen, and only take those which are compatible with your deen. And the values that you have that are incompatible with their values, मिसाल के तौर पे शर्म और हया का एक वैल्यू है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन हमें बताता है, और वो आपको वेस्ट में बिल्कुल नहीं मिलेगा, right? You will find that there is no concept of shyness or concept of modesty with regards to interaction with the opposite gender. Okay? And that is something that we cannot accept. That is something that we cannot choose for ourselves, because that is something that is completely opposite to what our religion, what our deen is telling us. So it's okay if your values are incompatible with their values. You can still study, you can still work, you can still have fun, you can still get along, you can still, you know, interact in that society, be a part of that society. In fact, I would say you can immerse yourself in that society without compromising any of these values. और अगर आपको मुश्किल लगे, and definitely कुछ situations में आपको मुश्किल लगेगा to hold on to your values. So you remember this wonderful hadith, आप सबको पता है, बहुत दफा हमने सुनी ली है, मगर उधर जाके इस हदीस की और भी ज्यादा कदर आती है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दीन जो है वो अजनबी हो जाएगा, जब दीन जो है वो अननोन हो जाएगा, जब दीन जो है वो अजीब हो जाएगा. सो उस वक्त में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फतूबा लिल गुरबा, बशारत है, खुशखबरी है, glad tidings to those who are अजीब, those who are अनोखे, those who are strange in that world. Right? For example, you will find very, very few people in your university, in your classroom, in your, wherever you're working or studying, who will dress outwardly with the sunnah. You will find very few people who will have a hijab or will have a niqab. You will find very few people who will take a break to pray no matter what the circumstances are. And that therefore is ajeeb. That is unusual. That is anokha. But उस अनोखेपन में अल्लाह ताला ने खुशखबरी रखी है उन लोगों के लिए कि पढ़ने की मानंद है, उस वक्त भी दीन को पुख्ता तरीके से पकड़ के चलते हैं. So I'm getting a notification that my internet is unstable. I hope that that is not the case and that you guys can still hear me clearly. If somebody can just tell me on the chat, मेरी आवाज अभी भी ठीक आ रही है सबको? Sir, you were lagging a bit before. Some seconds. My internet is a little bit unstable. I'm sorry about that. अगर ज़्यादा मसला हो तो please मुझे chat में बताएं, ठीक है? All right. So let me give you an example. एक story है जो कि मुझे बड़ी पसंद है personally. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में, the world superpower, just like the US is the world superpower right now, the world superpower in those times was the Roman Empire and the Persian Empire. These were the two superpowers of the time. So कुछ सहाबा जो थे वो एक दफा रोमन एम्पायर के किसी कोर्ट में थे, उनके किसी बादशाह या किसी वजीर के दरबार में थे, और उधर ऐसा हुआ कि उनको खाना सर्व किया गया, उन्होंने खाना खाया और एक सहाबी के हाथ से एक लुकमा खाने का जो है वो जमीन पे गिर गया. तो जैसे कि सुन्नत है, जैसे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, उन्होंने जमीन पे से उठाया, उसको साफ किया, बिस्मिल्लाह पढ़ा और पढ़ के खा लिया. तो दूसरे सहाबी जो थे उनके साथ वो थोड़े परेशान हुए, उन्होंने उनको थोड़ा सा इशारा किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, इधर इस चीज को बुरा समझा जाता है. सो दीज पीपल where we are, इनके values के मुताबिक what you're doing, which is the sunnah, is not considered a good thing to do. They don't consider it the right thing to do. It's against their values to eat something that has been dropped on the floor. तो उस साहबी ने जो जवाब दिया वो बड़ा खूबसूरत जवाब है, ये एक जोर में आपको बहुत काम आएगा. उन्होंने जवाब दिया, अत्रुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमाका, कि मैं इन बेवकूफों की खातिर अपने प्यारे की सुन्नत को छोड़ दूं. So I have something so valuable, which is the way of the Nabi sallallahu alaihi wasallam. Should I leave that just because these people whose presence I'm in, they consider it to be not good? I can't do that, because what I have is far more valuable. I can't let that go for the sake of what they will think. And that is what you have to do, no matter whether it's the case of if somebody expects you to shake hands with the opposite gender and you know that your religion does not allow that, if somebody, your friends want you to go to a bar with you and you know that you can't go to a place where
where alcohol is being openly consumed, if someone wants you to eat haram and there's no halal option on the table, then just because of that you will eat haram? No, you will hold on to those values that you have and you will not let peer pressure define you. And it's not that hard. आपको बहुत छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी इसके लिए. आपकी स्टडीज में इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी सोशल लाइफ इससे बिल्कुल डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं होएगा. इससे आप बिल्कुल पूरे तरीके से भरपूर खुशगवार और कामयाब जिंदगी उधर गुजार सकते हैं, अपने मकासद में कामयाब हो सकते हैं, without compromising on your values. Your identity and your values, you can hold on to them while being as successful as you want in your studies and in your career and in your life over there, right? The issue comes when you see so much of people going against those values. आपको इधर भी, आप अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वर्क प्लेसेस में काम कर रहे हैं, आपको कम लोग मिलते हैं जिन्होंने सुन्नत का हुलिया अपनाया होता है, या जिन्होंने नमाज के लिए ब्रेक लेनी होती है, या जिन्होंने ऑपोजिट जेंडर के साथ फ्री मिक्सिंग जो है उससे इनकार करना होता है. तो आपको थोड़ा सा एक प्रेशर महसूस होता है कि अगर मैं नहीं करूंगा, इनकी तरह नहीं करूंगा, तो मैं थोड़ा आउटकास्ट हूंगा, मैं थोड़ा आइसोलेटेड हूंगा. और वो चीज आपको उधर ज्यादा महसूस होगी, बिकॉज उधर तो you don't even have the same basic common denominator of the same religion anymore, right? But let me tell you, people respect you all the more for holding on to your values. I can guarantee you that. मैं जब शुरू में यूएस गया था तो हुलिया मेरा यही था, मैं जुब्बा पहनता था या शलवार. कमोफोबिया का डर था कि पगड़ी पहन के अगर फिरो ना तो वो एक फर्क, एक जिहादी किस्म की कॉनोटेशन लोगों के जहन में आती है, तो मैं नहीं पहनता था क्योंकि मैं थोड़ा सा डरा हुआ था. आप यकीन करें, मैंने रमजान में नियत की, जो थोड़ा जज्बा वैसे अल्लाह ताला ने दिया, और मैंने पगड़ी पहननी शुरू की. मेरा अपना एडवाइजर MIT में जो कि इंडियन हिंदू है, उसने पहले दिन मुझे कहा कि जैद ये पगड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत खूबसूरत लग रही है, इसको अब छोड़ना ना, इसको अब उतारना ना. कैन यू बिलीव इट? दिस इज अ non-Muslim. This is somebody who is from a country where they are literally oppressing and fighting against Muslims. Muslim genocide इस वक्त शुरू कर रहा है मोदी इंडिया में, but he had this value for my values and for me sticking up for my values. And यकीनन आपको यही मिलेगा अगर आपको नमाज की ब्रेक लेनी है. I've done a lot of times, I have a janamaz in my bag all the time when I'm in the US or when I'm elsewhere, and I just take that out. It's a folding janamaz, 150 रुपए की आपको मिल जाएगी किसी भी इस्लामिक स्टोर से. आप वो अपने बैकपैक में हर वक्त रखें. मेरी क्लासेस मगरिब की नमाज मेरी क्लासेस के दरमियान में आती थी अक्सर, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर 7 बजे से 8:30 बजे मेरी क्लास है और मगरिब जो है वो 7:15 बजे, I can't wait until 8:30. Maghrib will be done by then. I need to go out. मैं पहले से वजू करके रखूंगा, मैं एक जगह पहले से मुतय्यन करके रखूंगा क्लासरूम के बिल्कुल बाहर, मैं किबला पहले से पता करके रखूंगा, और मैं 5 मिनट के लिए क्लास से जाऊंगा और नमाज पढ़ के वापस आ जाऊंगा. उस 5 मिनट में जो भी क्लास में से मिस करूंगा वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कवर करा देंगे, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला की खातिर ये किया. और ना कोई आपको रोकेगा, ना कोई प्रोफेसर आपको इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेट करेगा, आपको कोई मसला नहीं होगा, और अल्लाह ताला आपसे राजी होंगे इंशाल्लाह. इसी तरह जुमे की बात है, अगर जुमे के वक्त आपकी कोई क्लास है तो आप उस क्लास को मिस करें, आप जाके जुमा पढ़ें, और आपको गारंटीड है, it is written in their laws that they cannot discriminate against a student on the basis of his religion. यानी कि they have to provide you the recording of that class or the notes of that class, या अगर कोई टेस्ट था, कोई असाइनमेंट थी उस क्लास में ड्यू, तो they have to accommodate you. So you stand up for your rights. वैसे तो you don't need to stand up, quote unquote, you just need to tell the professor, and the professor will accommodate you. And if he doesn't accommodate, he or she doesn't accommodate you, you can tell the administration. But that almost never happens, because they generally they're very respectful of people who respect their own values and who stand up for their own values. So हमारा मसला क्या होता है ना कि वेरी वेरी शाय ऑफ आवर वैल्यूज. हमारे जहन में पहले से ही एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मैं इस बात को जाहिर कर दूं कि मैं नमाज पढ़ता हूं, या इस बात को जाहिर कर दूं कि मेरी नमाज मेरे क्लास से ज्यादा जरूरी है. आप इस बात को जाहिर करें, इस पे फख्र महसूस करें, इसको पूरी दुनिया को बताएं. आपने खुद ये चॉइस इख्तियार की है कि आप एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहां के बाकी लोग जो हैं वो आपके दीन पर अमल नहीं करते या आपके दीन को मानते नहीं है. इस चॉइस की एक नेसेसरी हिस्सा इसे फेस करने पड़ेंगे. वो हलाल खाने में होएगा, जिसकी हम बाद में इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे. वो आपके नमाजों में शायद हो, वो आपके सोशल इंटरेक्शन में शायद हो, मगर रिमेंबर, यू हैव चोजन टू बी अ मुस्लिम एंड यू हैव चोजन टू गो देयर, एंड देयरफॉर इट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ यू एज अ मुस्लिम गोइंग देयर दैट यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड दैट यू एक्सेप्ट दीज माइनर इनकन्वीनियंसेस. जैसे कि आप इस इनकन्वीनियंस को एक्सेप्ट करते हो कि मैं पहले तो अपने माँ बाप के घर में रहता था, कोई किराया नहीं देता था, अब मुझे उधर जाके किराया देना पड़ेगा. ये एक्सेप्ट करते हो ना? मुझे फीस देनी पड़ेगी जो कि डॉलर
करोड़ों में होगी जो कि बढ़ते ही जा रहा है, ये भी एक्सेप्ट करते हो। मुझे इंश्योरेंस खरीदनी पड़ेगी जबकि मेरे ख्याल से मुझे जरूरत नहीं है, मगर इट्स द लॉ। यू एक्सेप्ट ऑल दोस थिंग्स दैट आर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ going there to get an education. Another necessary part of going there to get an education is that you must accept the minor, tiny, little inconveniences that come with following your deen over there. So that is one thing that I really want to emphasize कि आपने apologetic नहीं होना, आपने wishy washy नहीं होना, आपने अपने दीन के बारे में firm होना है। और अगर आप अपने दीन के बारे में firm हो तो आपको हर बंदा accommodate करता है, पूरी दुनिया आपको accommodate करती है इंशाल्लाह। एक बहुत अहम चीज जो कि अपने दीन पे कायम रहने और अपनी आइडेंटिटी को मजबूती से पकड़े रहने के लिए बहुत जरूरी है, वो ये है कि आपको उधर अच्छी सोहबत इख्तियार करनी है। द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कंपनी इज इवन मोर इंटेंस ओवर देयर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव पीपल अराउंड यू जो कि दीन पे अमल करते हैं, जो कि नमाजी हैं, जो कि सिर्फ हलाल खाते हैं, जो कि बुराइयों से बचते हैं, क्योंकि उधर आपके पास बुराइयों के मौके भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके पास हराम खाने के मौके भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपको पता ही है, ऑफ कोर्स थ्रू आवर मीडिया एंड आवर एक्सपोजर टू द वेस्ट के ये होएगा, राइट? सो इन दैट एनवायरनमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गुड मुस्लिम फ्रेंड्स, right? By good Muslim friends, I mean people who are not just acquaintances but good friends, and they're also good Muslims, right? वो आपके roommates हो तो बहुत ही अच्छा, और अगर आपके colleagues हो, आपके साथ क्लासों में हो, आपका उनके साथ यूनिवर्सिटी में भी उठना बैठना हो तो भी बहुत अच्छा। और अगर ऐसा नहीं है, आपका नाम ideally तो if you can get Muslim roommates, you should get Muslim roommates. If you can't, तो you try to find Muslims elsewhere who you can make friends with, who you can spend time with, who you can refresh your iman with, right? And not just कि आप उनको एक दफा साल में MSA के डिनर पे मिल रहे हैं, आपका उठना बैठना, आपकी करीबी दोस्ती, आपका जाके एक्सप्लोर करना, आपका हाइकिंग पे जाना या बीच पे जाना या वॉलमार्ट जाना, उन लोगों के साथ होना चाहिए जो कि आपके हम ख्याल हैं, जो कि आपके साथ वैल्यूज शेयर करते हैं, राइट? एंड वन एक्सीलेंट वे टू फाइंड दोस पीपल विद इन योर यूनिवर्सिटी इज द MSA, द मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन। तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में आपके पास मुस्लिम स्टूडेंट्स काफी सारे होते हैं, साउथ एशिया से भी होते हैं, मिडिल ईस्ट से भी होते हैं, अफ्रीका से कई आपको मिल जाएंगे, इवन ईस्टर्न यूरोप से, बोस्निया वगैरह से आपको मुसलमान मिल जाएंगे, और कुछ होते हैं जो कि उधर के ही पले बड़े होते हैं, राइट? सो यू विल फाइंड अ वेरी डाइवर्स मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली इन द यूनिवर्सिटीज, और उस MSA की कम्युनिटी में आपने टैप इन करना है और उसके जरिए से आपने अच्छे दोस्त जो हैं वो बनाने की कोशिश करने हैं। Some people, they're more outgoing in general, they're more extroverted, they find it easy to make friends. Some people don't, right? Those who find it harder to make friends know that this is something where you have to make a bit of an effort, because this is something that's very, very important for the safeguarding and progress of your iman when you go abroad, right? आपका जाहिर बात है अपने वालिदैन के साथ तो ताल्लुक होएगा, घर वालों के साथ स्काइप पे या व्हाट्सएप पे या जिस तरह मर्जी आप बात करते रहेंगे, मगर उधर आप तो एक चीज तो यह है कि MSA मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन जो है उसमें आपको ऐसे लोग मिलेंगे, और दूसरा ये है आपको लोकल मस्जिदों में ऐसे लोग मिलेंगे, राइट? सो इफ यू हैवंट rented out an apartment yet, so look for an accommodation, look for a place where a masjid is close by. अगर आपको मस्जिद करीब मिल जाती है कि आप उधर नमाजें चल के जाके पढ़ सकते हैं, तो that is the best thing that you can get. उधर तो मसाजिद में ज्यादातर खवातीन की भी जगह होती है, so even girls they can find masajid where they can go and pray. And of course they're not obligated to, मर्दों के लिए मस्जिद में जाना जरूरी है, औरतों के लिए नहीं है, मगर उधर जाके आपको साथी मिल जाते हैं, कम्युनिटी मिल जाती है, तो in that sense I think it's equally important for the girls as well to have a connection with their local masjid. But sometimes you'll be living off campus, or sometimes उसका access limited होएगा या जो भी है, तो आप मुसल्ला का भी देखें, आप मस्जिद का भी देखें. Find the masajid that are in your city and try to find an accommodation that is close enough to your masjid so that you can go there regularly. मैंने पहले साल में जब मैं गया था तो बहुत मेहनत करके, बहुत से ऑप्शंस रिजेक्ट करके फाइनली एक ऐसी अकोमोडेशन ली थी जहां पे मस्जिद मेरे से तकरीबन को 5-6 मिनट की दूरी पर थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मैं जा सकता था मस्जिद, हर दफा हर नमाज के लिए जा सकता था, वरना अगर 15-20-25 मिनट की वॉक पे होती तो बंदा हर दफा नहीं जा सकता, इवन एक दफा दिन में जाना चाहे वो मुश्किल पड़ जाती है। तो आपने कोशिश करनी है जितना हद तक इम्कान मुमकिन हो कि आप मस्जिद के करीब जो है अकोमोडेशन ढूंढे। अच्छा, अब मस्जिद में आपने
जो है नेक लोगों के साथ जुड़ना है। इधर हो सकता है आप मस्जिद नहीं जाते थे, एंड बिकॉज आपके घर का माहौल था, आपके वालिदैन हमारे जनरली हमसे ज्यादा नेक होते हैं, दीन पर होते हैं, घर के माहौल की बरकत से जो है वो ईमान की हिफाजत रहती है। उधर आपका अपना माहौल है और आपके अपने माहौल को आपने नेक बनाना है, अच्छा बनाना है, ऐसा बनाना है जैसे कि आपके ईमान के लिए वो मददगार हो, राइट? सो sometimes masjids, if you're talking about the US and Canada, they won't even have an imam, right? मस्जिद होगी, छोटी सी जगह होगी नमाज पढ़ने की, कोई ना कोई मुसल्ली जो है, कोई ना कोई रेजिडेंट जो है वो नमाज पढ़ाता होगा, इमाम शायद प्रॉपर ना हो, राइट? मगर इवन अगर इमाम ना हो तो आपको लोकल जो नमाजी हैं, जो साथी हैं, जो लोग उधर मस्जिद में जुड़ते हैं, जो मस्जिद की कम्युनिटी है, उसके साथ आप ताल्लुक बनाएं, उन लोगों के साथ आप ताल्लुक बनाएं। और बहुत अच्छा, मतलब I've noticed that people who live there are very supportive and friendly towards students because they know कि ये बंदा जो है अपनी फैमिली छोड़ के आ रहा है। मैं तो जब गया था तो आप यकीन करें, मुझे कभी कोई खाना बना के भेज देता था, कभी कोई इधर ड्रॉप करने को, कभी एयरपोर्ट से पिक करने को, हर anything and everything that they could help me with, there were people who were alhamdulillah ready to help me from the local masjid community, right? So that can be a great source of support for you. आपने लोकल स्कॉलर्स के साथ जुड़ना है। अगर आपकी मस्जिद में इमाम है या कोई स्कॉलर है, या आपके शहर की बड़ी मस्जिद में, not in your local mosque, maybe in the central mosque of the city there are scholars, या even आपकी यूनिवर्सिटी में कभी कभी मुस्लिम चैपलेन होता है, तो उनके साथ ताल्लुक बनाएं, उनके साथ जुड़ें। आई कांट एम्फसाइज दिस इनफ कि आप अगर अच्छी सोहबत इख्तियार करेंगे, अगर कान में खैर की बात पहुंचती रहेगी, तो फिर आपके लिए दीन पर चलना, दीन पर इस्तिकामत के साथ जुड़े रहना जो है वो बहुत आसान होता जाएगा कंपेयर टू इफ यू डोंट हैव दैट लिंक। अच्छा, जो मैंने मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन की बात की ना, उसमें थोड़ा सा कॉशन भी इख्तियार करना है, बिकॉज उधर MSAs में जो कल्चर है ना, उसमें अक्सर जो है वो पर्दे का, हिजाब का, एंड बाय दैट आई मीन segregation of the genders, उसका ख्याल को बहुत ज्यादा नहीं रखा जाता, right? That is something that you have to take care of while being associated with your MSA. Just because the girl is from the MSA or the boy is from the Muslim Student Association doesn't give you a free reign कि जो है आप उसके साथ WhatsApp पे चैट भी खुले तरीके से कर रहे हैं और आप उसके साथ वॉक पे भी जा रहे हैं और आइसक्रीम खाने भी जा रहे हैं। That does not make any of that halal or jaiz. You have to keep a respectable distance, and you have to talk to the opposite gender only when necessary and as much as is necessary for whatever work needs to be done. उसमें खुली दोस्ती जो है उसकी गुंजाइश नहीं है, even if it's with you know from the perspective of being in an MSA together, right? दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं ना, कि अगर आप मस्जिद फॉर एग्जांपल नहीं रेगुलरली जा सकते, तो आप रूममेट्स के साथ अपनी जो है, अगर आप मर्द हैं तो आप जमात उनके साथ करें, अगर आप खातून हैं तो आप उनके साथ जो है कुछ स्टडी सर्कल कायम करें, कुछ हफ्ते में एक दफा जो है दीन की बात, कुरान की बात करने का एक टाइम जो है वो अलॉट करें। आपकी MSAs डिपेंडिंग ऑन हाउ एक्टिव इट इज, उनकी एक्टिविटीज भी होंगी, उनके पास भी विजिटर्स, स्कॉलर्स, स्पीकर्स आएंगे, तो उन एक्टिविटीज में भी, उन इवेंट्स में भी जुड़ने की कोशिश करें। देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल गेट, दैट आपको अक्सर तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो कि इधर भी नहीं मिलती थी, क्योंकि हमारी मसाजिद में you know it's just namaz and nothing else. अक्सर पाकिस्तान, all these reasons that I've mentioned, उधर काफी ज्यादा एक्टिविटीज हो रही होती हैं, आपको मौके मिलते हैं उन एक्टिविटीज में शामिल होने के। तो आप अगर कोई इस्लामिक सर्कल, कोई इस्लामिक स्टडी ग्रुप, कोई कोर्स, कोई वीकेंड कोर्स, कोई ऐसी चीज ढूंढ सकते हैं जिससे आपको अच्छी कंपनी और कुछ दिन का इल्म भी साथ साथ मिलता रहे, तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत फायदा होगा। आई हाईली रिकमेंड दैट यू ट्राई टू डू दैट इंशाल्लाह। अच्छा, so that's one point. Let me see if there's any questions specifically about something that I've said. Not so far. I think I'll take all questions at the end, inshallah. The second thing that I want to talk to you about is differences in terms of ideology, right? Because in Pakistan, most people are Sunni and almost all Sunnis are Hanafi. Hanafi यानी कि इमाम अबू हनीफा ने जो फिक्र के असूल लिखे हैं उसके मुताबिक अपनी फिक्री डिसीजंस, अपनी jurisprudential rulings जो है वो फॉलो करते हैं. There's a lot more religious diversity in the West, a lot more schools of thought, a lot more ideologies. ठीक है, और कई लोग इस बात से थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार मैंने जिस तरह पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी है, अब मैं इधर आया हूँ, सारे जो है वो फर्क तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं, कोई X तरीके से पढ़ रहा है, कोई Y से पढ़ रहा है, कोई Z से पढ़ रहा है, और मैं जो हूँ मैं तो A से पढ़ रहा था,
right? So it's plurality within Islam. There is a lot of wusat within Islam, as long as the fundamentals are coming from Quran, Sunnat, and Salaf Salihin. I'll repeat that, very important, the third point as well. Quran, Sunnat, and the pious predecessors, the Sahaba, the Tabi'in, and Tabi'i Tabi'in. That ideology is more likely to be within the realm of, within the boundaries of, within the whole sphere and circle of Islam. Yes, we might consider that the finer points of those ideologies are perhaps not correct or not ideal or not the best that they could be, but आपने एक्सेप्ट करना है कि इस्लाम में बहुत सारी फर्क इंटरप्रिटेशंस हैं, कि इस्लाम में बहुत सारी वुसअत है फॉर पीपल टू हैव, फॉर स्कॉलर्स टू कम टू डिफरेंट कंक्लूजंस, एंड एज लॉन्ग एज वन इज फॉलोइंग अ स्कॉलर हु इज बेसिंग देयर ओपिनियन ऑन द कुरान, द सुन्नत एंड द सलफ सालिहीन, दैट पर्सन इज फाइन. आपने हर किसी को इस नजर से नहीं देखना कि ये बिदअती है और ये मुर्तद है और ये गुमराह है और ये डिविएंट है और ये ऐसे है और ये वैसे है, ठीक है. आपने हाँ अपनी जो भी आइडियोलॉजी है या स्कूल ऑफ थॉट है या फिक है या सेक्ट है, उस पे आप बेशक पाबंदी के साथ जमे रहें. You don't have to so let me put it another way. Find the balance between thinking that everybody else is wrong just because you do things in a different way. That's one extreme. And on the other extreme, getting so worried that there are so many different interpretations कि आप किसी भी एक interpretation को पकड़ने से और उस पर अमल करने से ही गए गुजरे रह जाए. That's the other extreme, right? So you have to find a balance between these. And I'll tell you what I found my personal balance to be. Everybody will find their own understanding of this. What I found when I went to the US, I lived in Boston for a couple of years. उसके बाद मैं वापस आया, लम्स में पढ़ाया 2 साल. उसके बाद I went to New York, and I lived in New York for about 6-7 months before the pandemic. What I found in my personal understanding of Deen is, I found my rigidity to be lessened. कम हुई मेरी rigidity by knowing that there are other possibly valid interpretations that are also based on the Quran, Sunnat, and Salaf Salihin. And I found an appreciation for those people who are following those interpretations. But I also found that the ideology that I'm following is also grounded very firmly in the Quran, Sunnat, and Salaf Salihin, and therefore I don't have any problem with it, right? Just because different things exist doesn't mean कि मुझे उन सबको इख्तियार करने की जरूरत है, right? For example, अगर मैं LGS से पढ़ा हूँ, तो just because HSN भी exist करता है और Beacon House भी exist करता है, अब मैं सबका स्टूडेंट तो नहीं बन सकता. मैंने तो LGS का ही स्टूडेंट रहना है, मगर मैं दूसरों को हकारत की नजर से नहीं देख रहा. मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ये भी एक वैलिड ऑप्शन है टू गेट एजुकेशन, राइट? तो उसी तरह आपने देखना है कि यू स्टिक टू योर आइडियोलॉजी एंड योर स्कूल ऑफ थॉट. यू डोंट ट्राई टू फोर्स दैट ऑन अदर्स. व्हाट यू ट्राई टू डू दावा टुवर्ड्स इज फंडामेंटल्स. अगर आप किसी अजनबी को, किसी एक्वेंटेंस को, किसी और बंदे को दावत दे रहे हैं, तो इस बात की दावत हरगिज नहीं देनी कि जी आपने आमीन ऊंचा पढ़ना है या नीचा पढ़ना है, कि आपने जो है हाथ इधर बांधने या उधर बांधने. आपने नमाज की दावत देनी है, आपने हलाल खाने की दावत देनी है, आपने शराब से बचने की दावत देनी है. ये सारी चीजें दावत दें. अगले बंदे पर अपना फिक, अपना सेक्ट जो है उसको जमाए ना, उसको जबरदस्ती ना करें, मगर at the same time अपने सेक्ट को, अपने फिक and other multiple interpretations that are there. So you can actually, what I found with myself and what I've seen from many of my friends as well, जो कि बाहर रहे हैं और पढ़े हैं, कि आपकी actually understanding और आपकी appreciation for the वुसअत in दीन वो बढ़ जाती है. आपको महसूस होता है कि हाँ, हमारे दीन में सिर्फ ये हनफी फिक नहीं है जिसको हम फॉलो करते हैं सब कॉन्टिनेंट में, मगर ये भी एक वैलिड और बड़ा पुख्ता जो है तरीका है. और जो लोग इसके अलावा फॉलो करते हैं इंटरप्रिटेशंस को, अगरचे वो इंटरप्रिटेशंस जो हैं हमारे नजदीक शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे जो उलमा की इंटरप्रिटेशन है, मगर इट्स अ वैलिड इंटरप्रिटेशन एंड इट्स समथिंग दैट कीप्स देम विदिन द स्फीयर ऑफ इस्लाम एंड इट्स समथिंग दैट अलाउज देम टू गेट क्लोज टू अल्लाह ताला व्हेन दे आर डूइंग अमल ऑन इट. इसमें एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ साइड नोट टू दिस, वो ये है कि यू विल आल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ आइडियोलॉजीज इन द वेस्ट जो कि क्लेम टू बी मुस्लिम but have elements that are very strongly, severely against Islam, right? उसकी मिसालें आपको पाकिस्तान की हिचकिचाहट नहीं है कि कादियानियत एक से बाहर है, वेस्ट में आपको डिपेंडिंग ऑन व्हाट एरिया यूर इन कैसे मिले, कुछ इमाम्स ऐसे मिले जो कि उस आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हो.
just because they're there doesn't mean that you have to accept what they're saying, right? Similarly, you will find some people जो कि मुनकिरीन हदीस है, नाउज़ुबिल्लाह, जो कि हदीस को रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि जी ये चाइनीज विस्पर्स है, इसके दीन में कोई दलील नहीं है, हम सिर्फ जो कुरान कहता है उसको लेंगे. That goes against the Quran itself, because the Quran says take what the messenger has given you, and what the messenger has given you is the hadith and the sunnah, right? Similarly, there are other ideologies which are essentially an attempt to make all those incompatibilities जिनका मैंने पहले जिक्र किया था उनको खत्म करने का, राइट? तो इस्लाम कहता है शर्म हया होनी चाहिए और जेंडर्स में तफरीक होनी चाहिए. आपको ऐसे मुसलमान मिलेंगे जो कि आपको आर्ग्यू करेंगे, बड़ा स्ट्रांगली आर्ग्यू करेंगे, अपनी तरफ से कुरान से ही आपको दलीलें दे रहे होंगे कि क्यों जो है पर्दे की जरूरत नहीं है, क्यों हिजाब की जरूरत नहीं है, क्यों जो है वो जेंडर मिक्सिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है. आपको ऐसे मुसलमान मिलेंगे जो कि आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों हराम खाने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सारे अहले किताब हैं और इनके गोश्त में कोई मसला नहीं है. आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि you'll find all kinds of opinions, and you'll find all kinds of people. You will find people who will try to legitimize same-sex relationships. You will find people who will try to legitimize क्या कहते हैं, believing in other prophets, na'uzubillah, like I said. So you have to be very wary of that. You have to be very wary. Okay, yes, you accept plurality within Islam, but if that plurality comes from the Quran, Sunnah, and Salaf Salihin, it is in accordance with the beliefs and practices of the earliest generations, because they are the ones who understood Islam. ये westernized whitewashing of Islam जो है ये acceptable नहीं होएगा. इस्लाम का एक नई शक्ल और नई रुख जो है वो उसको इख्तियार करना जो कि किसी ने पहले उम्मत की तारीख में नहीं किया, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होएगा. एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू लेट yourself fall for those ideologies. अगर आपको किसी भी चीज के बारे में शक है, परेशानी है, अगर किसी ने कोई आपको ऐसी आर्गुमेंट दे दी जिससे आपका थोड़ा आपके दिमाग में वो खटक रही है, तो किसी से बात करें, किसी से पूछें, अपने लोकल इमाम से पूछें, अपने जिसको भी आप नॉलेजेबल कंसिडर करते हैं बैक होम या ओवर देयर, टॉक टू पीपल अबाउट इट. डोंट लेट दीज काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज very clearly anti-Islamic ideologies. Don't let wusat be an excuse for allowing these ideologies to come into your thought process. इसी तरह आपको in your universities, people who are teaching Islam, you will find a lot of Orientalists who are teaching Islam in universities. They will have PhDs in Islamic studies, but they are studying Islam as an academic subject, right? Most of the time, they are not people who will be accepting or following Islam as a perfect religion and way of life. They will be studying it just like a scientist studies a rat, all right? So don't allow Orientalist views of Islam, purely academic, literary, scholarly critiques of Islam, to also cloud your views, because those are not people who are trying to accept Islam as a perfect way of life. Those are people who are trying to critique it from a purely academic standpoint. That is also an important endeavor, because हमें अपने दीन को एक academic perspective से समझना भी है, मगर that doesn't mean that they're right about things. So I guess summary of this part, which is talking about fiqh differences and ideology differences, is के आप अपने आप को आइसोलेट ना करें कि मैं सिर्फ उन्हीं की बात सुनूंगा जो कि मेरे फिक के या मेरे स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक हो. आप दूसरों की भी बात सुनें, आप दूसरों से भी खैर हासिल करें. I can tell you, when I was in the US and even now, I listen to all kinds of scholars. I listen to scholars who I disagree with on certain matters. I listen to scholars who my teachers disagree with on certain matters. But I know what matters I have to take from them. खैर की बात उनसे लेनी है, अच्छाई की बात उनसे लेनी, morality की बात उनसे लेनी है, फिक की बात उनसे नहीं लेनी. फिक की बात मैंने उन उलमा से लेनी है जिन उलमा को मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक जो है वो रिलायबल और ट्रस्टवर्दी कंसिडर करता हूं. और आपको उधर भी ऐसे उलमा मिल जाएंगे. आपको जो जनरल एक हनफी फिक के मुताबिक फैसले देने वाले उलमा आपको डेफिनेटली स्टेट्स में भी मिलेंगे. शायद आपके शहर में ना मिले, मगर आपको उसके अलावा जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं. I'll share some resources with you guys towards the end as well, जो कि आपको उधर इंशाल्लाह मुश्किल के बगैर मिल जाएंगे. Let's talk about Islamophobia a little bit. This is something that I believe people really don't have to worry about, because it's very, very
unlikely that this will have a major impact on your life, right? Yes, we read about cases कि जी उसको मस्जिद जला दी किसी ने या मुसलमान फैमिली को कत्ल कर दिया, मगर those are, you know, isolated cases. उससे ज़्यादा murders तो पाकिस्तान में होते हैं. You're probably more likely to get murdered as a Muslim in Pakistan than you are as a Muslim in the US or Canada or wherever else. So don't worry about, you know, your dress or your hijab or your shalwar kameez or your topi causing problems for you. It's not going to cause problems for you, inshallah. बहुत ही minor आपको शायद एक आधी दफा कभी फेस हो कि कोई आपको कोई गाली दे दे या कोई आपको बुरा भला कह दे या कोई आपको थोड़ी हकारत की निगाह से देख ले. But those are very minor things. I mean, you can accept that. That's you can brush it off. I'll tell you a couple of incidents जो मेरे साथ हुए थे जो कि थोड़े funny थे. एक इंसिडेंट तो ये था कि मैं एक लिफ्ट MIT में ही when I was in my university, so a lady went into the lift right before me and then I went into the lift after her. तो मुझे देख के ना वो बेचारी थोड़ी परेशान हो गई और वो लिफ्ट से बाहर निकल आई कि जैसे कि मैंने उसको पता नहीं क्या कर देना लिफ्ट में. तो मैंने कहा ठीक है यार अगली लिफ्ट ले लेगी मुझे क्या. सो इस तरह हो सकता है लोग आपसे डरे आपके हुलिये से, खासतौर पे अगर आप मेरी तरह 6 फुट के अच्छे हट्टे कट्टे दाढ़ी टोपी वाले बंदे, राइट. बट दैट डजंट मीन कि आपने अपने हुलिये को बदल देना है या आपने फिट इन करने के लिए अपने मोहम्मद नाम को मो कर देना है. ठीक है, आपने अपने आइडेंटिटी को कायम रखना है और आपसे अगर लोग डरते हैं, अगर लोग परेशान होते हैं, तो आपने अपने अखलाक के जरिए से व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद देम, तो उनको दिखाना है कि नहीं आपका इंप्रेशन गलत है और हम बहुत ही अच्छे और आला अखलाक वाले लोग हैं, राइट. ये हम है नहीं, ये अलग बात है, मगर आपने बनना है ताकि आप अच्छे नुमाइंदे बन सकें दीन के, राइट. दिस इज अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू. Whether you like it or not, whether you want it or not, whether you asked for it or not, the fact that you are a Muslim in a non-Muslim country means that you are a representative of Islam. आप उन लोगों के लिए इस्लाम के नमूने हैं क्योंकि आपका नाम मुसलमानों वाला है, क्योंकि आपका हुलिया हो ना हो मुसलमानों वाला. अगर आपका नाम मुसलमानों वाला है, अगर आप आए पाकिस्तान से हैं, you are a representative of Islam. You might not be the ideal representative, you might not be a great representative, but you always have to keep this privilege in mind. It's not a burden, it's a privilege. ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की आपके ऊपर नेमत है कि अल्लाह ताला ने आपको उसके दीन का नुमाइंदा बनाकर, इसकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने आपको दिया, राइट. सो ये जिम्मेदारी, इसको निभाने की जरूरत है. Here you're not a representative of Islam because everybody is a Muslim, right? But just like, for example, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और जो लोग इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं वो मेरी बात को समझेंगे. अगर आप लम्स में, because I think most of the people here are from लम्स, अगर आप लम्स में FSC करके आए, जबकि 90% लोग A levels करके आए होते हैं, तो जब लोगों को पता चल जाए कि आप FSC के बच्चे हैं, तो people start viewing you as somebody who they're going to evaluate FSC based on, right? You feel this, and you talk to some. I've talked to some of my friends. They will tell you that they feel this. You maybe didn't ask for it. You want to be treated just like anybody else. You don't want that additional responsibility, but that responsibility is there whether you want it or not. आप मुसलमान हैं और आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूके में हैं, स्विट्जरलैंड में हैं, पेरिस में हैं, आप इस्लाम के नुमाइंदे हैं और आपने उस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से पूरा करना है. आपने अखलाकियात ऐसे अव्वल दर्जे के दिखाने हैं कि वो कहें कि हाँ यार ये वाकई मुसलमान होने की वजह से इसके अखलाक जबरदस्त है. आपने लोगों के साथ डीलिंग पोलाइटनेस के साथ, ऐसी प्रोफेशनलिज्म के साथ, ऐसी आपने स्टूडेंट लाइफ में अपनी स्टडी और मुसलमानों का डर उनके दिल से निकले आपके जरिए से. You have to be a positive influence on the image of Muslims and the life of Muslims in the West where you're going, right? And this is a zabardast opportunity that Allah Ta'ala has given you. So let me tell you another incident that happened with me. मैं एक दफा रात को काफी लेट MIT से घर जा रहा था वॉक करके, तो मुझे पीछे से ना एकदम से आवाज आई, खाली सड़क थी, वीरान किस्म की, मतलब आई थिंक वाज अराउंड मिडनाइट और 1 AM, राइट. सो एकदम से ना पीछे से बूम करके आवाज आई. मैं पीछे देखा, एक बंदा था, उसने मेरे हुलिये को देख के बॉम्ब एक्सप्लोड करने की आवाज निकाल के और फिर हंस रहा था. ही वाज लाफिंग एट द फैक्ट के आई वाज शॉक्ड और सरप्राइज्ड बाय इट. सो आई लाफ्ड विद हिम एज वेल. आई सेड गुड वन एंड दैट्स इट. मजाक कर रहे हैं, मजाक करते हैं लोग. डोंट टेक इट पर्सनली कि हाय किया और उसने क्या कहते हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, और just brush it off. And the most interesting incident that happened with me, मैं बस स्टॉप पे था, बस का वेट कर रहा था और 2 ड्रगी किस्म के लोग थे, वो उस बस स्टॉप पे बैठे हुए थे. आई डोंट थिंक दे वर वेटिंग फॉर द बस, दे वर जस्ट जैसे ड्रगीज बैठे होते हैं ना, चर्सी किस्म के लोग. तो उनमें से एक ने मुझे सलाम किया, सलाम अलैकुम. उधर अमेरिकी थे.
मैंने स्माइल किया, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो how you doing? मैंने कहा I'm good, thank you. You like it? फिर अभी तक कॉन्वर्सेशन अच्छी भरी जा रही है, नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन है। अगला सवाल उसका था You gonna kill me? तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि किस किस्म का सवाल है। उतनी देर में उसका जो दूसरा चर्सी दोस्त था ना, उसने जवाब दिया नो जैक, आई वोंट लेट दैट हैपन टू यू। मैं थोड़ा और परेशान हो गया। तो मैंने मैं थोड़ा शॉक में था, तो इसलिए मैंने बस इतना सा ना सर हिलाया कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू किल यू। तो उतनी देर में मुझे कहता गुड, वी एंट गोना किल यू नीदर। तो और फिर उसको किसी ने डांटना शुरू कर दिया कि क्यों बेचारे बच्चे को तंग करे, उसको अपने बस पे जाने दो आराम से, राइट। सो दैट वाज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। आमतौर पे आपको अगर कोई लोग तंग करते भी है ना, तो या तो वो चर्सी होंगे या शराबी होंगे, और वो आपकी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं होंगे। आपका कोई कॉलीग आपको तंग नहीं करेगा इंशाल्लाह, आपका कोई प्रोफेसर नहीं आपको तंग करेगा, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं आपको तंग करेगा। बाहर अगर आप रात को लेट जा रहे हैं या कोई वीरान जगह पे जा रहे हैं या कोई पर्टिकुलरली क्राइम हैवी पार्ट ऑफ टाउन में जा रहे हैं, तो उधर हो सकता है आपको थोड़ा सा कोई तंग करे, कोई एक आधी गाली दे, कोई कुछ बोले, मगर उससे इंशाल्लाह आपकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसलिए भी परेशान होते थे कि जी हम मस्जिदों में क्यों जाएं उधर, जबकि मस्जिदों में जाने वाले जो हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो ट्रैक करती है और गवर्नमेंट जो है उन पे टैब्स रखती है। तो ठीक है भी रख ले, उन्होंने वैसे भी रखना है। दे विल कीप टैब्स ऑन यू वेदर यू आर गोइंग टू द मॉस्क और नॉट गोइंग टू द मॉस्क, एंड इफ यू हैव नथिंग टू हाइड, इफ यू आर नॉट fundraising for a terrorist organization back home, then why are you afraid of them keeping you under surveillance? आप मस्जिद जाओ, आपको कोई इसमें झिझक की या परेशानी की बात नहीं है, आपको तंग कोई भी नहीं करेगा इंशाल्लाह, as long as you're not doing obviously anything that's problematic. So that's pretty much all that I had, except for the last part, which is halal food, right? There are some questions which are not exactly relevant. असल में टाइम चूंकि बहुत कम है, 9 बजे ईशा की जमात है, तब तक मैंने फारिग होना ही है, मगर उसके तब तक इंशाल्लाह I'll be with you guys, I'll take questions. But the last topic that I have, which is the one that probably most people are most interested in, is halal food, right? And again, I'll tell you, you've chosen to be a Muslim and you've chosen by your own flaw. ठीक है, ये आपकी मर्जी है bear करने, and those consequences could mean that you have to pay extra, and your halal food is much more expensive than non-halal food. Those consequences could mean you have to drive 2 hours away to get halal food. You have to accept and bear those consequences. It is not acceptable to say just because it's difficult, just because it's expensive, just because it takes too much time, तो मैं जो है वो दूसरा खाना खा लूंगा। ठीक है, हलाल खाने से बहुत आपकी रूहानियत पे फर्क पड़ता है, आपके अमाल की कबूलियत पे फर्क पड़ता है, आपके अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक पे फर्क पड़ता है, आपके उसके बाद नेक अमल करने की तौफीक और हराम अमाल से, कामों से बचने की तौफीक पे फर्क पड़ता है, राइट? सो डोंट टेक दिस लाइटली एट ऑल। डोंट बी वन ऑफ दोज जो कि बाहर जाके पहले 2 महीने कोशिश करेंगे और फिर थोड़ा मुश्किल, फिर बस कहेंगे नहीं ठीक है बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो सब जायज, राइट? प्लीज, इफ यू आर गोइंग देयर, then know that this is a necessary part of you going there, that you must promise yourself right now कि मैं एक लुकमा भी जानबूझ के हलाल के अलावा उधर जाके नहीं खाऊंगा। ये अपने आप से वादा कर लो, इंशाल्लाह ये वादा करोगे, आपके जहन में एक फिक्र रहेगी और इंशाल्लाह आराम से बचे रहोगे, राइट? सो लेट मी for this part, let me take advantage of some work that's halal food, and share my screen and share this presentation, right? So this is a pretty long presentation जो कि मेरे 2 दोस्तों ने तैयार किया है जो कि उधर रहते हैं, और इसमें इन्होंने तफसील से बहुत अच्छे तरीके से हलाल खाने की सारी फिकी तफसील जो है वो बताई हुई है। I'm going to go over it very briefly and I'm going to share it with you in the end. मैं कुछ और रिसोर्सेज भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक गूगल ड्राइव की, अगर कोई LRS वाले जो हैं एक लिंक बना दें, गूगल ड्राइव का कोई फोल्डर बना दें, एम्प्टी फोल्डर, ठीक है, और उसका लिंक इधर शेयर कर दें चैट में, एंड देन आई विल पुट ऑल दीज resources into that folder for you inshallah, right? So let me very quickly go over this. Acha,
ये आप लोगों को जनरली पता है क्या चीज हलाल है क्या चीज हराम है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि शराब हराम है, आप लोगों को पता है कि वो सारा गोश्त, वो जानवर जो कि अल्लाह ताला के नाम के अलावा ज़िबा किया गया है, यानी कि किसी और का नाम लिया हो अल्लाह के अलावा, या फिर किसी का नाम ना लिया हो, राइट, all of that is haram. It is necessary to take the name of Allah on every individual animal that is being slaughtered, and that animal must be slaughtered by a Muslim for it to be halal and jais for you to eat, right? So I won't go into all of this detail, but we'll look at some very important questions. पहली जरूरी बात तो ये है कि आपने क्या कहते हैं, कुछ ये जो मिसकंसेप्शंस हैं इन पर हम बात करेंगे कि क्या मीट के अलावा सारा खाना हलाल है, क्या बिस्मिल्लाह पढ़ने से खाना हलाल हो जाता है, क्या कोशिश खाना हलाल है, क्या ऑर्गेनिक खाना हलाल है, एंड सो ऑन, राइट। सो लेट मी so these are for me to be halal, right? Share this with you. So don't worry about not being able to get all of it. Don't worry that I'm going through it fast. It must be slaughtered by a Muslim, and it must be having the name of God taken on it while क्या कहते हैं being slaughtered. ठीक है। तो ये जो एक चीज जो इसको बड़ा मुश्किल बनाती है ना अमेरिका में, you won't have this problem in the UK, but you'll have this problem in the US and in Canada, is that a majority of the meat that is sold as, okay, I don't know what's happened to my video, but I think since I'll be using slides for most of it, so that's fine. How on earth, पता नहीं ये बैकग्राउंड ब्लर कैसे हो गया, मगर दोबारा all right, so sorry about that, as I'm sure you guys can all appreciate Pakistani internet. अच्छा, so in the US that is okay and that is halal, कि जी आप मशीन ऑन करते हुए बिस्मिल्लाह दो और मशीन जो है वो मुर्गियों का की गर्दनें जो है वो काटी जा रही है, and that's fine and that's halal. That is not halal because turning off the video might help. It might help, so I'll stop the video. But can you guys hear me though? मेरी आवाज आप सबको आ रही कि नहीं? Yep, सही आ रही है। अच्छा, all right, so let me continue. So for meat to be halal, it needs to be slaughtered by hand by a person, by a Muslim person, and therefore ये जो machine slaughtered meat है ना, जो कि which is the majority of the so-called halal labeled meat that is available in the US, that is not okay, that is not halal, right? So what you need to be looking for is not halal chicken. What you need to be looking for is zabiha halal. Zabiha means ज़िबा किया गया, right? हाथ से ज़िबा किया गया, hand slaughtered भी कहते हैं, slaughtered by hand कहते हैं, या ज़बीहा कहते हैं. That is the meat that you need to look at. ये चिकन में मसला होता है, ये आमतौर पे आपके बीफ में और मटन में नहीं होता, because thankfully they don't have machines to slaughter those animals yet. मगर चिकन जो है ज्यादातर जो है वो उससे हो रही होती हैं. तो आप किस तरह डिटरमिन करेंगे कि आपकी जो मीट है वो हैंड स्लॉटर्ड है कि मशीन स्लॉटर्ड है? आपको क्या कहते हैं ये देखना है कि आपकी जो मीट कंपनी है वो किस हलाल अथॉरिटी से सर्टिफाइड है. एंड देयर आर सेवरल हलाल अथॉरिटीज दैट certify hand slaughtered meat, right? So there are some examples depending on where you are. Again, we don't have time to go into details, but you can contact me. I can try to help let you know what are the halal certifying authorities in your local area. आप वैसे भी Google कर सकते हो कि you can just Google Zabiha Halal Monitoring Authority Fulani City, right? And hopefully you will get some results, right? So some of the brands that are क्या कहते हैं that are serving hand slaughtered proper halal zabiha chicken are these brands, right? So ये एक क्रेसेंट है, जो कि बहुत अच्छी बात है इसकी कि ये वॉलमार्ट में मिलती है. अक्सर जगहों पे वॉलमार्ट में आपको क्रेसेंट चिकन मिल जाएगी. So क्रेसेंट चिकन जो है
साउथ वेस्ट में आपको ताहिर मिलेगी, और ये बॉक्स्ड हलाल जो है ये ऑनलाइन आपको कहीं भी डिलीवर की जा सकती है। ये थोड़ी सी महंगी है, ये मीट आपको हलाल मीट यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन एंड गेट इट डिलीवर्ड एनीवेयर इन यूएस, बट इट्स स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, और भी बहुत से हैं, यू नो देयर आर डिपेंडिंग ऑन योर वेयर यू आर इन द यूएस और कनाडा, देयर आर companies that supply Zabiha halal chicken. Of course, it's more expensive than non-Zabiha chicken because it has to be done by hand, and उधर of course labor जो है वो ज़्यादा महंगी है, machinery जो है वो ज़्यादा सस्ती है, but that's something that you have to deal with, right? So that's one thing. So the best thing is to rely on halal authorities, and those halal authorities which take Zabiha as their standard, which take hand slaughter as their standard. ठीक है। अच्छा, फिर एक सवाल लोगों का आता है कि अगर हम नॉन हलाल रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, तो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं या कोई हलाल रेस्टोरेंट अगर कोई है नहीं हमारे शहर में, तो फिर हम क्या करें? अच्छा, उसमें आपने 3-4 चीजों का ख्याल रखना है। आप वीगन या वेजिटेरियन खाना खा सकते हो, आप फिश खा सकते हो, मगर आपने क्रॉस कंटेमिनेशन का बहुत ख्याल रखना है, राइट? तो मिसाल के तौर पर अगर आपका मैकडोनल्ड से आप जाके फिले ऑफ फिश बर्गर खा रहे हैं, राइट, मगर वो फिले ऑफ फिश बर्गर की जो फिश है वो उसी तेल में फ्राई हो रही है जिस तेल में उनका बेकन बर्गर हो रहा है, जिस तेल में उनका बाकी उनका बिग मैक हो रहा है, राइट? सो दैट फिश, फिले ऑफ फिश एट मैकडोनल्ड्स इज नॉट हलाल बिकॉज देयर इज क्रॉस कंटामिनेशन विद नॉन हलाल मीट प्रोडक्ट्स, राइट? एंड दैट क्रॉस कंटामिनेशन इज द रीजन व्हाई मोस्ट रेस्टोरेंट्स में आपके लिए, मोस्ट नॉन हलाल रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना आपके लिए काफी एक मुश्किल काम बन जाता है, राइट? मिसाल के तौर पे अगर आप डोमिनोज जाएं, तो अगर आप उधर पिज्जा खाना चाहें, राइट, अब अगर आप सिर्फ चीज पिज्जा खाना चाहें तो चीज तो हलाल है और डो भी हलाल है और टोमेटो सॉस भी हलाल है, बट उसी चीज पिज्जा बनाते हुए उसी जगह पे साथ जो है वो अपना वो क्या कहते हैं, बाकी पिज्जास भी बना रहे होंगे और उन्हीं ग्लव्स के साथ वो बना रहे होंगे, राइट? सो यू हैव टू टेल देम कि जी फ्रेश ग्लव्स इस्तेमाल करें, न्यू ग्लव्स इस्तेमाल करें, और उसको फ्रेश नाइफ से, क्लीन नाइफ से काटें। डोंट यूज द सेम नाइफ दैट यू यूज टू कट द पोर्क पिज्जा, राइट? या बेहतर तो ये आप उनसे कटवाएं ना, आप घर पे आप एक पिज्जा कटर रखें और खुद घर जाके काटें, राइट? बट यू हैव टू टेल देम टू अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन। सिमिलरली इफ यू गोइंग टू एनी अदर रेस्टोरेंट, यू हैव टू मेक श्योर दैट दे अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन। इवन इस हद तक अगर आप आइसक्रीम खाने जा रहे हैं और एक फ्लेवर उस आइसक्रीम शॉप में रम एंड रेजन आइसक्रीम का है मिसाल के तौर पे, तो उस आइसक्रीम में शराब है और उसी स्कूप से वो, आपको पता है आइसक्रीम शॉप में क्या करते हैं, एक स्कूप है वो एक आइसक्रीम के डब्बे में डालते हैं, फिर उसको पानी में डालते हैं, फिर दूसरे आइसक्रीम के डब्बे में डालते हैं, वही स्कूप है ना, तो उससे भी मसला है। तो आपने उनको क्या कहना है? आपने कहना है कि यूज अ फ्रेश टब ऑफ आइसक्रीम एंड यूज अ क्लीन स्कूप, राइट? तो इसी तरह आपको हर चीज में क्रॉस कंटेमिनेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नो थिंग दैट इज टचिंग बोथ अ हराम प्रोडक्ट एंड देन टचिंग योर नॉन योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट essentially. So that is something that people don't take care of. लोगों का ख्याल है कि just because मैं फिले ऑफ फिश खा रहा हूँ तो that means कि necessarily हलाल है। भाई उस किस तेल में बना है, उसको किस हाथों ने छुआ है, उनको किस छुरी से काटा गया है, इन बाकी चीजों का भी आपको ख्याल रखना है। तो generally this is the safe option. If there are halal restaurants in your city, just forget about all this परेशानी and don't eat at non-halal restaurants. Don't eat at other restaurants. ठीक है? आप वीगन रेस्टोरेंट्स पे जाके खाना खा सकते हो, उसमें सिर्फ आपको अल्कोहल का चेक करना है, बाकी सारी चीजें उसमें जारी बात है ठीक होंगी बिकॉज उसमें कोई मीट प्रोडक्ट वगैरह नहीं होएगा। अच्छा, एक ये तो बात होगी ना गोश्त की। आपके आसपास हलाल गोश्त की दुकानें होंगी, आमतौर पे किसी बंगाली की या किसी इंडियन की या पाकिस्तानी की, वो इंडियन स्टोर्स उनको कहते हैं, तो उसमें आपको इस तरह का मिल जाएगा, राइट? आपको इवन अक्सर वो फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, K&N's के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, इसी तरह सबरोसो वगैरह या इस तरह के उधर के इक्विवेलेंट ब्रांड्स है ना, वो आपको मिल जाएंगे। और उसमें भी आपने ज़बीहा हलाल चेक करना है। तो ज़बीहा हलाल अगर आपको फ्रोजन चिकन या बीफ वगैरह मिल जाता है तो वो भी बहुत अच्छा है, आपको उसमें भी काफी आसानी हो जाएगी कि आप घर पे जाके आराम से बना लो, ठीक है? अच्छा, फिर हलाल ग्रोसरी आइटम्स, इसमें ना आपने 3-4 चीजें करनी है टू मेक श्योर कि जो ग्रोसरी शॉपिंग आप कर रहे हैं वो हलाल है। बिकॉज लोगों का ख्याल है कि जी बस मीट का ख्याल रखना है ना कि मीट हलाल हो, बाकी चीजों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी चीजें तो हलाल ही होंगी। मिसाल के तौर पे मैं अगर मेयोनेज खरीद रहा हूँ, या मैं अगर ऑलिव्स का टिन खरीद रहा हूँ, या मैं अगर क्या कहते हैं
चिप्स का पैकेट खरीद रहा हूँ तो वो तो हलाल ही होएगा, मगर नहीं, वो नेसेसरली हलाल नहीं होएगा। अमरीकियों को बहुत शौक है हर चीज में या तो कीड़े डालने का एज फूड कलरिंग, रेड फूड कलरिंग अक्सर जो है वो कीड़ों की बनी होती है, या फिर उनको हर चीज में शौक है पोर्क फ्लेवरिंग डालने का, या फिर उनको हर चीज में शौक है क्या कहते हैं काउ बेस्ड बीफ बेस्ड जेलेटिन डालने का। तो इन सारी चीजों से भी वो प्रोडक्ट पूरा का पूरा खाना जो है, प्रोसेस्ड फूड जो है, बेकरी आइटम जो है, वो हराम हो जाता है, हलाल नहीं रहता। तो आपने क्या देखना है, हाउ टू बाय हलाल ग्रोसरी आइटम्स। ठीक है, एक तो वन इजी थिंग यू कैन डू इज देयर इज एन ऐप कॉल्ड स्कैन हलाल। इसको अभी डाउनलोड कर लें, इसको इस्तेमाल करना सीख लें। इसको इवन पाकिस्तान में अगर आप अल्फता या इस तरह के स्टोर्स पे जाएं जहां आपको बाहर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उधर की भी कई चीजें जो है आपको पता लग सकती हैं कि यू नो सम ऑफ द थिंग्स दैट यू माइट बी ईटिंग इन पाकिस्तान आर आल्सो नॉट हलाल, बिकॉज स्कैन हलाल जो है वो बहुत से प्रोडक्ट्स का जो है आपको क्या कहते हैं स्कैन करके बता देता है कि उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो कि हलाल ना हो, उसका बारकोड स्कैन करके, राइट। सो एक तो अगर कोई चीज वीगन या वेजिटेरियन है तो आपने सिर्फ फिर अल्कोहल ही चेक करना है उसमें, बाकी सारी चीजें उसमें ठीक होंगी, सिर्फ अल्कोहल चेक करना रह जाता है। और अगर स्कैन हलाल पे आप सेटिंग्स अपनी करें कि आप ज़बीहा, राइट, सो आई थिंक नेक्स्ट पेज पे होगा, स्कैन हलाल को डाउनलोड करके उसमें सेटिंग्स जो है ज़बीहा पे सेट करें और फिर बारकोड स्कैन करके आपको बता देगा कि फलानी चीज जो है वो ठीक है या फलानी चीज नहीं है। कुछ ज्यादातर बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपको क्या कहते हैं इस पे मिल जाएंगे, और इस तरह का वो आपको बताएगा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि हलाल नहीं है। मिसाल के तौर पे कोचनील जो है ये इंसेक्ट से बना होता है, तो इसलिए ये वाला जूस जो है ट्रॉपिकाना ऑरेंज स्ट्रॉबेरी जूस ये आपका हलाल नहीं होएगा। ठीक है, सो एक तो ये बात होगी स्कैन हलाल की। दूसरी बात ये है कि आप कोशर सिंबल को देखें। कोशर इज द जूइश वर्ड फॉर हलाल, मतलब क्योंकि यहूदियों के नजदीक उनके लिए जो परमिसिबल टू ईट है उसको वो कोशर कहते हैं। कोशर मीट इज, ठीक है, ये बहुत वाजे तौर पे कह दें, कोशर मीट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स आर नॉट हलाल फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कुरान कहता है कि अहले किताब का आप गोश्त खा सकते हो, अहले किताब का वो गोश्त जिस पे वो खुदा का नाम लेके सैक्रिफाइस करें। आजकल के यहूदी जो हैं दे कंसिडर के जी एक दिन में जितने एनिमल सैक्रिफाइस होने हैं उनमें से सबसे पहले एनिमल पे अगर हम अल्लाह का नाम पढ़ दें, खुदा का नाम पढ़ दें, तो वो सारे हलाल हो जाते हैं, राइट। दैट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू अस 99.9% of the animals that they are sacrificing are not halal. ठीक है, they might be considered kosher, but kosher meat is not halal meat. Kosher other products, non-meat kosher products are generally halal. ठीक है, so what that means is if you find this symbol, right? Yeah. So if you find this symbol, this is the kosher symbol. कोशर का एक ये यू होता है या के होता है या ये समटाइम्स ये बाकी सिंबल जो है, एनी ऑफ दीज, इफ यू फाइंड एनी ऑफ दीज ऑन योर प्रोडक्ट, ठीक है, देन क्या कहते हैं यू आर प्रीटी श्योर दैट दैट प्रोडक्ट इज वेरी लाइकली टू बी हलाल। ठीक है, ये इन सिंबल्स में से कोई भी सिंबल अगर आपको किसी प्रोडक्ट में मिल जाए तो दैट प्रोडक्ट इज फाइन, यू कैन ईट इट। अगर इन सिंबल कोई सिंबल ना हो मगर सिर्फ कोशर लिखा हुआ हो, ठीक है, तो वो आप फिर भी उसमें थोड़ा गौर करना है कि ये बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी आपने चेक करने हैं, क्योंकि शराब वगैरह उसमें फिर भी हो सकता है। ठीक है, बट जनरली दीज सिंबल्स काफी मैं समराइज करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सिंबल्स को आप देखें और इन चीजों को ही आप फिर इख्तियार करें। और हर चीज में ये देखें, आपने डबल रोटी लेनी है, आप कोशर डबल रोटी लें, आपने दूध खरीदना है, कोशर दूध खरीदें, आपने अंडे खरीदने हैं, कोशर अंडे खरीदें। ठीक है, हर चीज में आप जो नॉन मीट प्रोडक्ट्स है ना उसमें कोशिश करें कि आप कोशर लें, और कोशर लेते हुए भी चंद इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका आपको फिर भी ख्याल रखना पड़ेगा। कोशर लें और साथ स्कैन हलाल को चेक करें। योर ग्रोसरी आइटम्स इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ इट विल बी कवर्ड बाय दैट। ठीक है, इसमें मजीद तफसील है कि कोशर परीफ क्या होता है, कोशर डेयरी क्या होता है एंड सो ऑन, उसकी तफसील में अभी मैं नहीं जा सकता, मगर आपके साथ ये पीडीएफ शेयर करूंगा, उसको आप गौर से देख लेना इंशाल्लाह, राइट। सो दीस पोटैटो चिप्स आर फाइन, दिस केचप इज फाइन, दिस नटेला इज फाइन बिकॉज इट्स कोशर डेयरी। ठीक है, अच्छा, फिर ये मजीद तफसील है अबाउट क्या कहते हैं फूड ऑफ द अहले किताब एंड व्हाई आज का अहले किताब का खाना जो है वो गोश्त जो है वो ठीक नहीं है, एंड देन मिसकंसेप्शन अबाउट कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें एंड सो ऑन। तो इस तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, फिर जो कुछ क्वेश्चंस कॉमन लोगों के होते हैं जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट हैं, चीज एंड वे जो है
that is fine mostly. ठीक है. कुछ लोगों को रेनेट के बारे में होता है. There's a difference of opinion about rennet. मगर rennet, as long as it's not pork based, it has it's fine. You can eat pizza, but make sure that they use a clean knife, they use fresh gloves, and better that they don't cut the pizza, you cut it yourself at home. Just because you live in a small town, just because the nearest halal shop is in the big city 2 hours away, does not mean that you're allowed to eat non-halal food. You can't eat kosher meat products either. Kosher meat is not halal meat. Non-meat kosher products are very likely to be fine. Organic से halal का कोई ताल्लुक नहीं है. Things can be organic and not halal, or they can be non-organic and halal. These things have nothing to do with each other. अच्छा, फिर एक और जो काफी कॉमन क्वेश्चन होता है सिंथेटिक अल्कोहल का, राइट? सो वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस या वनीलिन फ्लेवर जो होता है, इसमें सिंथेटिक अल्कोहल होता है. हनफी फिक के मुताबिक सिंथेटिक अल्कोहल जो है दैट इज फाइन, एंड इट ओनली दी क्या कहते हैं नेचुरल अल्कोहल, synthetic alcohol used in small trace quantities is not an issue, right? इसकी मजीद अगेन तफसील जो है वो आप देख सकते हैं. आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई चीज है जिसके बारे में आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं पता चल रहे, या इंग्रेडिएंट्स देखने के बावजूद आपको श्योरिटी नहीं हो रही कि ये हलाल है कि नहीं है, तो यार आप जिंदा रहोगे उसको खाए बगैर. प्लीज उसको छोड़ दो. अपनी क्या कहते हैं दीन का सौदा जो है इतना सस्ता ना करो कि आप कोई इस तरह की कोई चीज गलती से खा लो जो कि हलाल ना थी. So be careful with regards to eating natural flavors जो हैं. Just because it says natural flavors, that natural flavor can be animal based, right? मेकअप में भी इस तरह की आपको कई चीजें ऐसी मिल सकती हैं जो कि उनमें एनिमल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो. मेडिसिन. Okay, I think I am back. Sorry about that again. Let me again share my screen. अच्छा जी, हाँ, अगेन अल्कोहल की भी मजीद तफसील है. हमने ये देखना है ज़बीहा हलाल, हमने बेसिकली ये देखना है कि हाथ से ज़िबा किया गया जानवर हो. ठीक है, तो ये अगेन लाइक आई सेड आई विल शेयर विद यू. अच्छा, इवन व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लुक फॉर ब्रेड विद अ kosher symbol? Because some of the sugars that are present in bread can be animal based. They put extra sugar in bread. हर चीज में शुगर डालते हैं. अमेरिका में they love sugar. आपको हर चीज मीठी ज्यादा महसूस होगी. And that can be animal based sugar, right? So therefore yogurt में खास तौर पे gelatin हो सकता है. आइसक्रीम में अल्कोहल डाली जा सकती है. रम रेजन मिसाल के तौर पे ये फ्लेवर है, राइट? कई जो कैप्सूल्स या मेडिसिन होती हैं वो सॉफ्ट मेडिसिन हैं, सॉफ्ट जेल्स हैं, तो उसमें issues हो सकते हैं, right? Natural flavors can mean anything, and therefore unless it has a kosher symbol or unless Scan Halal is telling you that it's okay, you should avoid it. Food colors में issues हो सकते हैं. गम जो है कई चीजों में issues हो सकते हैं. So इस तरह, हाँ, even अगर आप मछली खरीदो, अच्छा उनको बियर भी और शराब हर चीज में डालने का बड़ा शौक. So even मछली के ऊपर जो बैटर लगता है उसमें भी वो शराब डाल देते हैं, राइट? सो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप अपनी तसल्ली से जो है इस पीडीएफ में देख सकते हैं. ये मशीन स्लॉटर के बारे में बताया हुआ है पूरा कि उसका प्रोसेस क्या होता है, वो क्यों हलाल नहीं है. सो आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन हियर एंड आई विल रीस्टार्ट माय वीडियो, एंड आई हैव अबाउट 7-8 minutes and there are, but unfortunately मैं बीच में गायब हो गया था, तो उससे पहले के जो सारे सवाल है ना वो मुझे नजर नहीं आ रहे. मुझे सिर्फ 8:32 के बाद के सवाल जो है वो नजर आ रहे हैं. Link where these resources will be shared. Yeah, I'll upload these resources in this link that Hamza has shared. So can somebody copy paste the questions that were asked before 8:30, and I can answer those. अच्छा, दूसरी बात ये, let me share my phone number as well. Anybody anytime have any question, चाहे वो किसी फिक का सवाल हो, चाहे वो spirituality पे based हो, चाहे वो कोई confusion दूर करने का हो, you can contact me
personally, and I can talk to you, inshallah. Anisa Iftikhar ne sawal pucha hai, can girls go abroad for further studies without their mahram? You're not going to like the answer, and the answer is no, because khawaateen ke liye, औरतों के लिए महरम के बगैर जो है शरई सफर करना वो हनफी फिक्र के मुताबिक एटलीस्ट जो है वो जायज नहीं है. Right? Is machine slaughtered meat that we get in Pakistan halal? I don't know where you're getting machine slaughtered meat in Pakistan. Pakistan में machine slaughtered meat नहीं मिलता अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, as far as I know. पाकिस्तान में जो आपको मीट मिलता है जो कि जिसको आप शायद मशीन स्लॉटर्ड समझ रहे हो, वो दैट इज के उसके ज़िबा करने के बाद, ज़िबा मतलब इंसान ही करता है, और उसके बाद उसकी सारी कटिंग वगैरह जो है वो मशीनरी से होती है. दैट्स फाइन. वंस द एनिमल इज स्लॉटर्ड, आफ्टर दैट एनी processing that is done on the animal can be through machines. That is not an issue whatsoever. It's only the slaughtering of the animal, usko ziba karna, Allah ka naam leke uski gardan pe churi pherna, that needs to be done by a person. And as far as I know, I've never seen it done any other way in Pakistan. Any other question? Jazakallah, sir, for this valuable and vital session. I think there are no more questions. Jazakallah. Thank you everybody for attending, and please ये link जो है अपने पास लिख लें, copy कर लें, जिस पे ये slides share होंगी, और एक दो और resources भी मैं आपके साथ share करूँगा इंशाल्लाह. और इसके अलावा मेरा नंबर जो है वो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है इंशाल्लाह. So anybody have any questions whatsoever? एक दो और resources हैं which I can tell you about, you know, Q&A के. So there are 3 websites which I personally use for fiqh questions. ये 3 websites हैं: askimam.org, seekershub.org and islamqa.org. इस पे जो है आप अगर अपना सवाल पूछ, basically if you Google, if I have a question, for example, I have a question कि भाई मेरी मस्जिद में जो इमाम है वो उसकी दाढ़ी भी नहीं है और वो टोपी भी नहीं पहनता, तो उसके पीछे मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, right? I'll write that question and then I'll write ask imam, right? So that question will then you can find that question having been answered on one of those websites, and inshallah that's a good reliable resource for you inshallah. Can you talk about different calculations for prayer timings? Prayer timings की बहुत सी फर्क opinions हैं, बहुत सी फर्क calculations हैं. US में जो use होती है आम तौर पे, that is called या तो Muslim World League की use होती है या Islamic something of North America, Islamic Council of North America की use होती है. But the one that if you are Hanafi and if you're following Hanafi fiqh, then the one that you should be using is क्या कहते हैं Islamic University Karachi, right? So Islamic University Karachi के नाम से, which is Darul Uloom Karachi basically, उसकी जो prayer timings हैं वो आप अपने ऐप में डाल के इस्तेमाल कर लें. जो भी आप prayer timings की ऐप इस्तेमाल करते हैं उसमें ये सारे options available होते हैं. इसमें again मजीद तफसील है. I didn't touch on a lot of fiqh today. I just talked about a few fiqhy points with regards to halal food, but there are a lot of other fiqhy points that you will come across, right? मिसाल के तौर पे जुराबों पे वजू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर मेरे इमाम ने किया हो तो फिर मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं. और अगर कुछ लोग जो हैं वो मेरे शहर में ईद जो है वो मून साइटिंग के मुताबिक करते हैं और कुछ लोग जो है वो फात चौधरी की तरह कैलकुलेशन पे करते हैं, तो फिर मैं क्या करूं? So there are a lot of questions. You can find solutions to many of these on the websites that I posted as well. Because I can't answer everything in this short session. Prayer timings के हवाले से you stick to Islamic University Karachi and inshallah that will be fine. Can you dissect our identity into Muslim and Pakistani identity, because we grow up confused what is sprouting from culture and what is from religion? इसके बहुत सिंपल सादी सी जवाब है. जो चीज़ आपको कुरान, हदीस और सलफ सालेहीन के बातों से मिलती है वो आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी है. जो चीज़ उधर से नहीं मिलती वो सारी आपकी पाकिस्तानी आइडेंटिटी है. उसमें से कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद भी हैं, अगरचे वो डायरेक्टली हमें दीन से ना मिले फिर भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं. कुछ चीज़ें जो है वो दीन के खिलाफ और नुकसानदेह भी हो सकती हैं. सो इसलिए you stick to what is being taught by the deen inshallah. The rest of it you can choose to keep, you can choose not to keep, whatever part of it that is not a vital or important thing inshallah. I think we'll have to stop here, but anybody can get in touch with me at any time if they need any further guidance inshallah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.